وہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ان موقفات کا فائدہ اٹھا کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، میرا دل کرتا ہے کہ میں ان کے منہ پہ ایک چپیڑ رکھ کے دوں. میرا بہت دل کرتا ہے. خواجہ صاحب کے حوالے سے کسی کی مجال ہو سکتی ہے وہ بیٹھ کے بکواس کرے وہاں، تو وہ میرا جہلم والا محبوب بہت زیادہ محتاط ہو جائے. آپ کو ہم یہاں نہیں ڈسکس کر رہے، آپ کے حوالے سے ہم بات نہیں کر رہے، آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ ہمیں بات کریں. اگر آپ کو بہت شوق ہے آئیے پروگرام میں بیٹھ کے اپنا موقف دیجئے. کیمرے اور کمرے میں بیٹھ کے ہمارے مہمانوں کے حوالے سے آپ موقف دیں گے، اتنی آپ کے اندر جرت ہے تو آئیں پروگرام میں. اس کے لیے آپ کا جگرا نہیں چلتا ہے. ہم نے اپنی زبانیں رمضان میں تو سیلی ہیں کہ ہم آپ کے حوالے سے کوئی بات ہی نہیں کرنا چاہتے ہی نہیں آپ کو، تو پھر آپ کیوں ہمارے حوالے سے بول رہے ہیں؟ میں نے دیکھیں 24 گھنٹے بھی نہیں گزرنے دیے، بلکہ میں نے 24 منٹ بھی نہیں گزرنے دیے. جیسے ہی مجھے پتا چلا اس ویڈیو کا، مجھے پتا چلا 15 گھنٹے کے بعد جمعے کی نماز کے بعد، تو میں یہ ویڈیو تو میں نے بعد میں بنا رہا ہوں. میں نے پہلے شعیب مدنی صاحب جو ڈائریکٹر ہیں ان کے جی ٹی وی کے، انہیں میں نے فون کر کے میں نے اپنی کمٹمنٹ شو کی ہے اور میں نے کہا بالکل تیار ہوں. انہوں نے کہا بالکل ہم بھی تیار ہیں آپ کو آن لائن لینے کے لیے یا اپنی ٹیم یہاں پہ روانہ کر دیں گے. میں نے کہا جو موڈ آپ کو بہتر لگے میں تیار ہوں انشاءاللہ تعالی ختم نبوت کا مقدمہ لڑنے کے لیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اب دیری جو کچھ بھی ہوگی اس اینکر کی طرف سے ہوگی. اور اس نے کہا کہ جرت ہے میں تیرے منہ پہ تماچا مار رہا ہوں. جی میں نے وہ تماچا آپ کا پکڑ لیا ہے اللہ کے فضل سے. اس سے اگلی بات میں کرنا نہیں چاہتا، ایک اخلاق سے گری ہوئی بات. اور میں انشاءاللہ تعالی ختم نبوت کا مقدمہ لڑوں گا اور میں بتاؤں گا کہ ان کے سارے بزرگ، چاہے وہ اشرف تھانوی صاحب ہوں جن کی ڈیتھ 1945 میں ہوئی، دیوبند کے بزرگ، اور بریلویوں کے پیر میر علی شاہ صاحب 1937 میں فوت ہوئے، اور 1921 میں اعلیٰ حضرت احمد رضا بریلوی صاحب فوت ہوئے، وہ بھی بریلویوں کے بڑے بزرگ. یہ سب کے سب لوگ ان ساری چیزوں کا دفاع کر کے گئے ہیں. اور یہ تو ایک عبارت ہے، اس کے علاوہ وہ عبارتیں جن کا دفاع خود مفتی حنیف قریشی صاحب نے کیا ہوا ہے اپنی ویڈیو میں اسی اینکر کے ساتھ بیٹھ کے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی الدین. الحمدللہ آج 22 مارچ 2024 کو جمعے کے دن نماز جمعہ کے تھوڑی دیر بعد میں آپ سب لوگوں سے مخاطب ہوں. اور اس کے پیچھے ایک کریٹیکل ریزن ہے، چونکہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایشو بہت سینسٹیو ہے، اور ختم نبوت کے حوالے سے کام صرف ہمارے پلیٹ فارم جیلم اکیڈمی سے ہو رہا ہے. باقی لوگ صرف اینٹی قادیانی معاملات دے کے چل رہے ہیں. لیکن ہم چاہے غلام احمد قادیانی دجال ہو یا چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ، شبلی رسول اللہ، یہ بھی جتنی چیزیں بھی بزرگوں کی طرف منسوب ہیں ان کے حوالے سے ہم اللہ کا شکر ہے کہ دلیری کے ساتھ بات کرتے ہیں. جمعے کی نماز کے فوراً بعد جب میں نے سوشل میڈیا کھولا، ظاہر اپنے لیپ ٹاپ کے اوپر یوٹیوب میں میں نے جی ٹی وی کے جو آفیشیل چینل ہے ان کو سبسکرائب کیا ہوا ہے. اس کے اوپر ہمارے جی ٹی وی کے جو اینکر ہیں جو آج کل رمضان نشریات لے کے چل رہے ہیں، ان کی جانب سے میرا نام لے کر اوپنلی مجھے چیلنج کیا گیا کہ اگر آپ میں جرت ہے تو آپ پروگرام میں آ کر دفاع کریں. وہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ان موقفات کا فائدہ اٹھا کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، میرا دل کرتا ہے کہ میں ان کے منہ پہ ایک چپیڑ رکھ کے دوں. میرا بہت دل کرتا ہے. خواجہ صاحب کے حوالے سے کسی کی مجال ہو سکتی ہے وہ بیٹھ کے بکواس کرے وہاں، تو وہ میرا جہلم والا محبوب بہت زیادہ محتاط ہو جائے. آپ کو ہم یہاں نہیں ڈسکس کر رہے، آپ کے حوالے سے ہم بات نہیں کر رہے، آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ ہمیں بات کریں. اگر آپ کو بہت شوق ہے آئیے پروگرام میں بیٹھ کے اپنا موقف دیجئے. کیمرے اور کمرے میں بیٹھ کے ہمارے مہمانوں کے حوالے سے آپ موقف دیں گے، اتنی آپ کے اندر جرت ہے تو آئیں پروگرام میں. اس کے لیے آپ کا جگرا نہیں چلتا ہے. ہم نے اپنی زبانیں رمضان میں تو سیلی ہیں کہ ہم آپ کے حوالے سے کوئی بات ہی نہیں کرنا چاہتے ہی نہیں آپ کو، تو پھر آپ کیوں ہمارے حوالے سے بول رہے ہیں؟ تو بالکل میں بغیر کسی تردد کے تیار ہوں اللہ کے فضل سے ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کسی بھی فورم پہ بات کرنے کے لیے. آپ لوگ جسے بھی سمجھتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے چیمپئن ہے کہ وہ اپنے بزرگوں کی گستاخانہ عبارتوں کا اور کفریات پہ مبنی جو عقائد ہیں جو ان کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، جن کو یہ لوگ خود پرنٹ کر رہے ہیں، الٹا ڈیفینڈ کر رہے ہیں، اور چشتی رسول اللہ کے حق میں ان لوگوں نے مناظرے لڑے ہوئے ہیں، جو ویڈیوز موجود ہیں. جو بھی کوئی ہے تیاری کریں اور سامنے آ جائیں. انشاءاللہ میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. بالکل مجھے کوئی ایک لمحے کا بھی توقف نہیں ہے. جیسے ہی میں نے وہ ویڈیو دیکھی تو میں نے جی ٹی وی کے جو ڈائریکٹر ہیں جو یہ تمام افیئرز کو دیکھتے ہیں اوورال، ان پروگراموں کو بھی اور باقی تمام ریلیجس پروگراموں کے جو اوورال انچارج ہیں، شعیب مدنی بھائی حافظہ اللہ تعالی، اور یہ وہ پرسنالٹی ہیں کہ جن کا میں
पर्सनली बड़ा ममनून हूँ इस हवाले से कि उन्होंने पहली दफ़ा मुझे GTV के ऊपर मौका दिया कि मेन मीडिया चैनल के ऊपर आकर अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम के हवाले से दिफा किया जाए यौम अली के मौका के ऊपर, और उसके बाद से एक सिलसिला शुरू हुआ। लिहाजा उनसे एक इस हवाले से एक मोहब्बत का रिश्ता है। तो काफ़ी अरसे के बाद चूँकि ये वीडियो सामने आई तो मैंने कहा बजाय मैं इनके किसी छोटे मोटे प्रोड्यूसर के साथ बात करूं जो रमज़ान नशरियात को लेके चल रहे हैं, मैं डायरेक्टली उन्हीं डायरेक्टर साहब से बात करूं। मैंने उनसे बात की कि इस तरह आपके चैनल से मुझे चैलेंज किया गया है। उन्होंने कहा मेरे इल्म में तो नहीं ऐसी कोई बात। तो मैंने उन्हें कहा कि आप ये वीडियो देखें। 2 मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इन्होंने ऑफिशियली आपके यूट्यूब के चैनल्स के ऊपर अपलोड किए। उन्होंने देखी तो उन्होंने कहा बिल्कुल अब आपका ये राइट है कि आप जो भी कहेंगे हम तैयार हैं। अगर आप हमें कहें कि हम ये वीडियो डिलीट करते हैं तो हम डिलीट कर देते हैं, क्योंकि इन्होंने पर्सनली आपको इस तरीके से अटैक किया है। मैंने कहा मैं डिलीट नहीं करवाऊंगा, मैं तो तैयार हूँ खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ओरिजिनल मुकदमा लड़ने के लिए, सिर्फ एंटी कादियानी मुकदमा नहीं बल्कि खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकदमा, जिसमें चाहे कोई चिश्ती दज्जाल हो, कोई थानवी दज्जाल हो, कोई शिबली दज्जाल हो, जैसा कि उनके मानने वाले उनकी तरफ मंसूब करते हैं। उन बुजुर्गों के बारे में हमारा हुस्न ज़न है कि वो दुनिया से जा चुके। अगर उन्होंने ये अमाल किए थे तो अल्लाह के हुजूर भुगतेंगे, और अगर नहीं किए थे 1000 टन हुस्न ज़न अपने सर के ऊपर कि उन्होंने ये सब कुछ नहीं कहा होगा, तो अल्लाह के हुजूर बरी हैं। लेकिन ये लोग तो पीछे उनको बदनाम करवा रहे हैं और उल्टा उनके नामों के ऊपर ये हम जैसे खत्म नबूवत के जो मुजाहिद हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें डिफेम करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने कहा मैं तैयार हूँ, आप अपनी टीम को यहाँ जेलम अकेडमी भेजें, जिस वक्त चाहे वो मेरे साथ रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, मैं तैयार हूँ। और दूसरी तरफ जो भी बैठना चाहता है, जिंदा बुजुर्गों में से किसी को बुलाना चाहते हैं उनको ले आएँ, और अगर फौज शुदगान में से कोई रूहानी तौर पे वहाँ आना चाहते हैं अपने बुजुर्गों की इन गुस्ताखाना इबारतों का दिफा करने के लिए तो आ जाएं, बिल्कुल मैं तैयार हूँ, अल्लाह का शुक्र है। देखें ये ऑलमोस्ट 15 घंटे पहले वीडियो अपलोड हुई थी उनकी तरफ से, और उसमें उन्होंने बड़े यानी सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि मैं इनके मुंह पे तमाचा मार रहा हूँ। यानी मेरी तरफ उन्होंने नाम लेके ये बात की कि वो आए और सामने दिफा करें, तो बिल्कुल मैं दिफा करने के लिए तैयार हूँ। आप मेरे भाई जो भी है, बड़े से बड़ा बुजुर्ग जिंदा या मुर्दा, वो तैयार है अगर इन कलिमात का दिफा करने के लिए तो वो आ जाएं। आपका वास्ता किसी अहलुल हदीस से या किसी देवबंदी से या अहले तशय्यो में से किसी आलिम से नहीं पड़ा, वाक़अतन खत्म नबूवत के मुजाहिद से आपका वास्ता पड़ा है। और अल्लाह का फजल है कि हमने अपने इस छोटे से प्लेटफॉर्म से जो दावत बुलंद की है, खालिसतन तौहीद की दावत, अहलुल बैत के दिफा की दावत, सहाबा कराम अलैहिम रिदवान की अजमत की दावत और खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत, उसने बाकी सब लोगों को पछाड़ के रख दिया। तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ जी फोरम के ऊपर आने के लिए। मुझसे आप रब्ता करें, मैंने उनके साथ रब्ता कर लिया कि जी उनको भेजें, अपनी टीम को यहाँ आके मेरे साथ रिकॉर्डिंग कर लें। तो उन्होंने कहा कि हम किसी और एंकर को भेज देते हैं। मैंने कहा नहीं, मेरी तो ये बिल्कुल डिमांड नहीं है। जो एंकर मुझे चैलेंज कर रहा है आप उसे भी भेजें, मैं उसके साथ भी बैठने के लिए तैयार हूँ। एक डेकोरम के जरिए, एक ज़ाहिर है मेरी तो कामयाबी है, ये बिल्कुल ये मेरी कामयाबी है। मैं ये विक्ट्री का निशान बना के ये बात कर रहा हूँ। मेरी कामयाबी है कि मेन नेशनल टीवी के ऊपर अब ये खत्म नबूवत का मुकदमा डिस्कस होना शुरू हो गया अल्लाह के फजल से, ताकि जिन लोगों ने खत्म नबूवत के नाम के ऊपर चंदे खाए, बुजुर्गियां अवेल की, तो लोगों को पता चले कि उनका असली चेहरा क्या था। तो मैं अल्लाह के फजल से तैयार हूं। मुझे आप किसी फिरके का नुमाइंदा न समझिएगा कि वो खामोश हो जाएगा। मैं अल्लाह के फजल से इस चीज़ को डिस्कस करूंगा इल्मी ग्राउंड्स के ऊपर, एक एक रेफरेंस के साथ। हमारे स्टूडेंट्स को तो पता है, मैं ऑलरेडी कर चुका हूं। तो कुछ अरसा पहले, इसका बैकग्राउंड भी मैं आपको बता देता हूं क्या था। कुछ अरसा पहले एक रमज़ान की नशरियात में शाम के वक्त खाना खाते हुए इन्हीं एंकर साहब ने एक वीडियो जो है वो छुप के बनाई, और बाद में मुझे खुद जो डायरेक्टर शुएब मदनी साहब हैं उन्होंने कहा कि ये जो वीडियो बनी तो कारी खलील रहमान साहब हफिज़हुल्लाह ताला ने आके गिला किया कि ये आपके यानी यहाँ पे चैनल पे क्या हो रहा है। तो फिर इसी एंकर साहब ने उनसे माफ़ी मांगी है जाके कि ये वीडियो उन्होंने लीक की। लेकिन वो चूंकि वीडियो लीक हुई और उसमें मेरा जिक्र था, लिहाजा इब्तदा इस टीवी एंकर की तरफ से हुई है, मैंने इब्तदा नहीं की। उसमें इनके जो मुफ्ती साहब हैं उन्होंने कहा कि कारी खलील रहमान में मिर्जे की रूह आ गई है, और पीछे से इन्होंने आवाज कसी कि बिल्कुल मिर्जे की रूह आ गई है। पहले मेरा रसाला पढ़ो, जो मैंने तुम्हें रगड़ा दिया हुआ सही कर नहीं पढ़ा है तुमने। चलो आज इसी पे फैसला कर। मैं ले आऊं सूफिया की किताब जिसमें उलूल का। यार एक सेकंड, यही बात है, मिर्जे वाली रूह आज इसमें फिर आ गई है।
वो भी इसी तरह कहते हो फलाने सूफी की किताब। अब जिस तरह तुम्हारी हदीस की किताबों में सारी हदीस की चीजें काबिल कबूल नहीं है, वहां कहते हो जी ये मौजू है, ये फलानी है, तो एक सूफी की किताब उठा के हमारे मसलक में डालोगे तुम लोग। यानी जो भी खत्म नबूवत के ऊपर काम करता है तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरा नाम बोला जाता है। तो फिर मैंने उसे रिबटल किया और मैंने पूरा मुकदमा बयान किया। जैसे ही वीडियो अपलोड हुई तो एक और वीडियो सामने आ गई। अब वो जो दूसरी वीडियो सामने आई है जिसमें कारी खलील रहमान साहब चिश्ती रसूलुल्लाह के हवाले से मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब हफिज़हुल्लाह ताला से गुफ्तगू कर रहे हैं, उसके बाद अभी तक संडे नहीं आया। वो संडे अभी आने वाला है 24 मार्च को, इंशाल्लाह मैं उसके हवाले से भी डिस्कशन करूंगा, क्योंकि उसमें दोबारा से मुफ्ती साहब ने भी और उनके एंकर ने भी जो है वो जेहलम वाली सरकार और ये सारा जिक्र किया मेरा। मैं आपका मुरीद बनना चाहता हूँ मोइनुद्दीन से, चिश्ती से। तो उन्होंने कहा कि फिर तू कह ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह। ये तरीकत ने गुल खिलाए हैं। मुझे बताइए, नबी मुकर्रम के कलमे की जगह लोग अपने कलमे पढ़वा रहे हैं और हम उसे कह रहे हैं कि ये दुनिया का माना हुआ पीर है। ठीक, चल फिर तो हमारे इकरारुल हसन साहब सही कर रहे हैं, ये उस जमाने में थे नहीं, वरना उनके पीछे भी पड़ जाते। ये जिन किताबों का हवाला दे रहे हैं, पहली बात ये किताबें ही उन बुजुर्गों के साथ गलत मंसूब है और इस पर पिछले इतने अरसे से हम रो रहे हैं। और आपके जो जेलम के महबूब हैं वो इन्हीं तो बोगस चीजों पर उनकी बुनियाद खड़ी है। तो इंशाल्लाह उसका जवाब तो मैंने देना है। तो उसके बाद मैंने कारी खलील रहमान साहब को राब्ता किया खुद से, क्योंकि उन्होंने अपनी वो वीडियो शेयर करवाई हुई थी हमारे व्हाट्सएप चैनल के ऊपर, जो व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं हमारे एकेडमी का जो नंबर है, इस पे उन्होंने मुझे भेजी थी कि अली भाई को ये दिखा दें। मैंने देखी, उसके बाद मैंने उन्हें फ़ोन किया और मैंने उनका शुक्रिया अदा किया कि आपने खत्म नबूवत का मुकदमा लड़ा। लेकिन उसमें जो उनसे कमज़ोरी हुई वो मैंने बता दी कि उन्होंने आपको चकमा दिया ये कह के कि ये किताबें बदल चुकी हैं। बिल्कुल किताबें नहीं बदली हैं, झूठ बोल रहे हैं ये लोग। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने भी बिल्कुल झूठा फतवा दिया कि किताबें बदल गई हैं। उसकी वजह यह है कि ये लोग 2024 में आके ये बात कर रहे हैं। हम दिखाएंगे इंशाल्लाह नेशनल टीवी के ऊपर कि 1921 में डेथ हुई है आला हजरत आमज़ा बरेलवी साहब की, और उन्होंने फतावा रज़विया के अंदर एक किताब को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मकबूल कहा, और उस किताब का नाम है सबा सनाबिल, और कहा कि ये नबी इस्लाम की बारगाह में मकबूल है और उसमें चिश्ती रसूलुल्लाह वाला वाकया लिखा हुआ है। लिहाजा आला हजरत को 1921 तक पता था कि ये इसमें लिखा हुआ है और उन्होंने इस किताब को एंडोर्स किया, लिहाजा किताब कोई नहीं बदली। और अगर ये कहते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चला, तो फिर आला हजरत की बुजुर्गी फारिग होगी कि उस शख्स को ये गौसे वक्त मानते हैं और उसने ऐसी किताब की तारीफ कर दी और बगैर तहकीक के, लिहाजा आला हजरत की तहकीकात फारिग हैं कि वो बगैर तहकीकात के इतनी गुस्ताखाना किताबों को नबी इस्लाम की बारगाह में कह रहे हैं मकबूल है। तो दोनों सूरतों में इनके लिए जो है ना वो लूज करने वाली पोजीशन है। या तो आला हजरत को लूज करेंगे या फिर अपने बुजुर्गों से ये हाथ धो बैठेंगे। दूसरे इनके बुजुर्ग पीर मेर अली शाह साहब 1937 में डेथ हुई है। उन्होंने अपनी किताब तहकीकुल हक फी कलिमतिल हक के अंदर बाकायदा चिश्ती रसूलुल्लाह वाले वाक़े को कोट किया, रद्द करने के लिए, बल्कि एक रूहानी उसका एस्पेक्ट बयान करने के लिए। लिहाजा उनके नजदीक भी ये किताब कोई नहीं बदली हुई थी। और तीसरे इनके जो पेटी भाई हैं जो हनफी देवबंदी हैं, उनके बड़े बुजुर्ग मौलाना अशरफ अली थानवी साहब, उन्होंने बाकायदा, चूंकि वो चिश्ती सिलसिले से ताल्लुक रखते थे तसव्वुफ में, उन्होंने बाकायदा एक किताब लिखी अस्सुन्नतुल जलिया फिल चिश्तियतिल अलिया। उसके अंदर बाकायदा उन्होंने चिश्ती रसूलुल्लाह वाले वाक़े का दिफा किया है और वो तावीलात पेश की हैं कि अल अमान अल हफीज। और मैंने इन सारी चीज़ों का पोस्टमार्टम अपनी कई वीडियोज़ में किया हुआ है। यहाँ तो मैं एक मुख्तसर सी वीडियो बना रहा हूँ और मैं ये पेपर आउट कर रहा हूँ ताकि कल को कोई देवबंदी या बरेलवी आलिम ये कह ना सके कि हमें तो इंजीनियर साहब के दलाइल नहीं पता थे इसलिए हमें तैयारी का मौका दें। मैं अपने सारे कार्ड शो कर रहा हूँ आपको, और मेरी डिमांड ये है इन एंकर साहब से कि आप बरेलवियों के बड़े मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब को बिठा लें, देवबंद के बड़े मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को बिठा लें, क्योंकि अब इनका मुश्तरका मसला है चिश्ती रसूलुल्लाह थानवी रसूलुल्लाह। मैं बैठने के लिए तैयार हूं इंशाअल्लाह ताला। ये लोग हमेशा भागते हैं और चैलेंज ये लोग करते हैं, मैंने कभी चैलेंज नहीं किया। मैं तो इन लोगों के चैलेंज के जवाब में कहता हूं, जब ये कहते हैं हमारे उलमा के साथ बैठे, तो मैं कहता हूं कि ठीक है अपने बड़ों को लेके आओ। लेकिन अब तो मैंने वो शर्त भी ढीली कर दी है कि अगर नेशनल टीवी के ऊपर ये बात हो रही है और लाइव चल रही है तो मैं छोटे के साथ भी बैठने के लिए तैयार हूं इन कुफरिया इबारतों के ऊपर बात करने के लिए। कुरान और सुन्नत की रोशनी में मैं मुकदमा रखूंगा, ये भी अपना मुकदमा रखें, पब्लिक फैसला करेगी तो मैं तैयार हूं। तो लिहाजा आपके पास टाइम है, आप फौरन, मैंने देखे 24 घंटे भी नहीं गुजरने दिए, बल्कि मैंने
24 मिनट भी नहीं गुजरने दिए। जैसे ही मुझे पता चला